ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਸੀਮਾ ਮਹਾਜਨ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮਹਾਜਨ, ਨੀਤਿਕਾ ਮਹਾਜਨ, ਸੁਦੀਪ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਨਮੈ ਮਿਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਲੋਕਨਾਥ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਰਮਲਾ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਨ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ IRS ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ BTech ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਵਿਖੇ ਮਹਾਜਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 2000 ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਸੀਮਾ ਮਹਾਜਨ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਨ 1988 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸੁਦੀਪ ਮਹਾਜਨ ਜੀ USA ਵਿਖੇ ਉੱਘੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 3070 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਭਵਨ SL ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਚਿਨਮੈ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਧ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ परिवार चलन ਲਈ वचनबद्ध है। और उन्होंने जो रचना बनाई है उस रचना में आप भी वो प्रकट हो गए उसमें। अपनी शक्ति को, अपनी सत्ता को प्रभु ने उसमें डाल दिया। यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, इतना हुक्म समाये ले, इतना हुक्मे करे विनाश। देखो संसार में जीव आते हैं और मैंने पहले भी कहा कि कईयों को शरीर मिलता नहीं, कईयों के कर्म, कईयों की भक्ति इतनी होती है वो ठाकुर जी के चरणों में सीधे चला जाता है। ऐसे संत महात्मा, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इतनी भक्ति की है कि वो सीधे ठाकुर जी के चरणों में गए। इतना हुक्म समाये ले, पर वो किसको अपने में विलीन करते हैं प्रभु? जिनको वो हुक्म करते हैं। इतना हुक्म समाये ले, इतना हुक्मे करे विनाश।
कईयों को वो हुक्म कर देते हैं, नहीं यार तुम संसार में ही ये आत्मा रहे, और कईयों का हुक्म परमात्मा का ये अपने पास बुला लेते हैं। यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, इतना हुक्म समायल है, इतना हुक्म करे विनाश, इतना बाणे कट ले, इतना माया विच निवास। देखो बाना कहते हैं रजा को, कईयों को वो संसार से निकाल देते हैं अपनी रजा के अनुसार, इतना बाने कट लेते हैं, इतना माया विच निवास। और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको इस माया में ही रखते हैं, संसार में ही रखते हैं प्रभु। एक भी आंख न जापी किसे आने रास। और ये बात महाराज कहते बताई नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, ये परमात्मा किस पर दयावान हो जाएंगे, किस पर दया उनकी आएगी और किसको अपने पास बुलाएंगे। इतना बाने कट ले, इतना माया विच निवास, ए भी आंख न जापई जे किसे आने रास। और ये प्रतीत किसको होता है, ये ऐसी समझ किसको आती है कि कईयों को वो माया में रखते हैं प्रभु और कईयों को अपने पास बुलाते हैं। किसको समझ आती है? अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं नानक गुरमुख जानिए। बड़े ध्यान से सुनना, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रकाश। ये समझ उसको आती है जो गुरु की शरण में जाते हैं, जो साधु की शरण में जाते हैं। नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रकाश। प्रकाश जिसको आप वो ज्ञान देते हैं, इतनी समझ जिसको देते हैं, वो गुरु की जब शरण में जाता है तो समझ जाता है कि इस संसार में आना जाना सब कुछ किसके हाथ में है, उस प्रभु के हाथ में। तो जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रजा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और दूसरी बात इस पंक्ति में थी, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। देखिए इंसान कभी कभार कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इंसान कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं, ये क्यों ऐसे घटित हुआ मेरे साथ। कई बार देखिए हम ना, जब कोई हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है कोई, तो हम किसी को कहने लगते कि इसकी वजह से मेरा काम खराब हुआ, इसकी वजह से है। अब नहीं, जो पेड़ हमने लगाया पहले, देखो जैसा हमने कर्म किया है ना, उसी के अनुरूप हमें इस संसार में फल मिल रहा है। दद्दा दोष न देहु काहू, दोष कर्मा अपने। कहते कभी किसी को दोष मत दो, दोष कर्मा अपने, अपने कर्मों पर दोष दो। जो मैं किया सो मैं पाया, जो मैंने किया है वो मेरे को मिला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। दद्दा दोष ना देओ काहू, कहते किसी को दोष मत दो। दोष किसको दो? अपने कर्मों को। दोष कर्म अपने, किसी पर ब्लेम नहीं कि उसकी वजह से ये मेरे साथ ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं। दोष कर्म तो वो तो एक जरिया बना है। परमात्मा ने आपको फल देना है, वो जरिया है। किसी की वजह से आपको दुख मिल गया, पर वो दुख किसी की वजह से नहीं मिला, वो आपको अपने कर्मों की वजह से मिल रहा है।
ये ज्ञान की बातें हैं, पर जो गहराई से इन बातों को सोचता है ना, वो कहता मेरे कर्मों पर ही कुछ कमी होगी। तो दद्दा दोष न देव काहू, दोष कर्मा अपने आप, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न देव अवर जना। जो मैंने किया है वो मैंने पाया, और दोष न देव अवर जना। मन मूर्ख काहे बिललाइए, ये मेरे मन, ये मूर्ख मन, तू अब क्यों रोता है? मन मूर्ख काहे बिललाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। जो पूर्व में हमने कर्म किया है उसी के अनुसार हमारे लेख लिखे गए हैं, उसी के अनुसार हमारे लेख लिखे गए हैं। तो हम महाराज कहते हैं मन को, कहते हैं कि मन मूर्ख अब तू क्यों रोता है, क्यों बिलखता है, क्यों दुखी होता है? मन मूर्ख काहे बिललाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। जो तूने पूर्व में किया है वो तेरे को काटना ही पड़ेगा। जैसा बीज बोगे वैसा काटना ही पड़ेगा। एक बाबा फरीद की पंक्ति मेरे को याद आ गई। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा लोड़े दाख बिजोड़ियां, किकर बीजे जाकर। फरीदा लोड़े दाख बिजोड़ियां। देखो बिजोर जहां वो रहते थे बाबा फरीद, वो शहर का नाम था उधर का कोई। और दाख बोलते हैं उधर की भाषा में छोटे छोटे अंगूर जो होते हैं। कहते लोड़े दाख बिजोड़ियां, किकर बीजे जट। जट ने क्या बीजा था पहली में, खेत में? किकर का बीज, और किकर बहुत कड़वा होता है। लोड़े दाख बिजोड़ियां, कहते तू लोड़ता है, लोड़ता मतलब तू मांग रहा है कि मेरे को अंगूरों के गुच्छे मिले, पर तूने बीया बोया क्या था? किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। पट बोलते हैं रेशम को। कहते बीज बोया था कि काहे का? ऊन का। जो ऊन स्वेटर हम पहले जमाने में स्त्रियां बुनती थी ना, अब तो नहीं रहा है, कोई बुनता नहीं। तो कहते सिला क्या था? ऊन। अब क्या मांग रहा है? रेशम। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं। जो बोया उसी को काटना पड़ेगा, चाहे रोके काटो चाहे हंस के काटो। इसलिए मन मूर्ख काहे बिललाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। अब आगे पंक्ति बड़ी ध्यान से सुनिए। देखो जो हम कर्म करते हैं उसके फल में हमें क्या मिलता है? या दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, दो चीजें मिलेंगी। कहते दुख सुख प्रभ देवन हार। कहते प्रभु ने हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल में दे दिया दुख और सुख। कहते इसको छोड़ दे, इसको रोना कि दुख आ गया, दुख आ गया, ये हो गया, ये हो गया, सुख आ गया तो बड़े अपने आप को समझने लगना। कहते नहीं, दुख सुख प्रभ देवन हार, अब त्याग तुझ से चितार। कहते इसको छोड़ दे, जो मिल गया ठीक है, तूने बोया था तेरे को मिल गया भाई। दुख सुख प्रभ देवन हार, वो प्रभु देने वाले हैं दुख सुख। अवर त्याग, इसे त्याग दे, छोड़ दे, रोना छोड़ दे। क्या कर? तू तिसे ही चितार, तू उसका चिंतन कर प्रभु का, और अच्छे कर्म कर। मन मूर्ख काहे बिललाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसे चितार। जो किछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अजान। कहते जो प्रभु ने तेरे को की कर दिया है ना, उसको प्रसाद रूपी ग्रहण करके उसको मान ले हाथ जोड़कर। इसको बोलते हैं प्रभु का हुक्म मानना। और जो प्रभु का हुक्म मानते हैं ना, जो भी हो गया हमारे साथ ठीक है, उसकी रजा, जो हमने किया था हमें मिल गया।
वो आदमी इंसान जीवन में सुखी रहता है। जो हो गया उसको मान लो, उसकी रजा मान लो भाई, उसका बाना। कहते हैं ना, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु, तू जो कुछ कर रहा है वो हमें क्या लगे? मीठा। नानक नाम पदार्थ मांगे, पर वो कब मीठा लगेगा? उसका बाना, उसका हुक्म जब हम नाम के साथ जुड़ेंगे, प्रभु के नाम के साथ, गुरु की शरण में जाएंगे, सत्पुरुषों की शरण में जाएंगे, तो जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। देखिए, धरा बोलते हैं धरती को। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, और दरा से ये निकला है शरीर। इसी दरा से शरीर पाए, इसी दरा में फिर सब समाए। इसी धरती से हम उत्पन्न हुए हैं, इसी धरती में हम सबने विलीन हो जाना। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक गा रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरख पसेरो पंख को, तैसो एह संसार। भगत कबीर जी कहते हैं, रे मन तेरो कोई नहीं। हम संसार में जब आते हैं ना, कहते हैं ना, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा, पर नहीं। देखिए, रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को, तैसो ये संसार। भगत कबीर जी कहते हैं, बिरख बोलते हैं वृक्ष को। कहते हैं जैसे एक वृक्ष पर एक पंछी का बसेरा होता है ना, वो कितनी देर के लिए वृक्ष पर आके बैठता है? थोड़ी देर के लिए, और ऐसे वो फुर हो जाता है। कहते हैं बिरख बसेरो पंख को, जैसे पंख मतलब पक्षी का जैसे जितनी देर बसेरा है, कैसो ये संसार। कहते तेरा इस संसार में आना उतनी देर का है। रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को, कैसो ये संसार। राम रस पिया रे जिन रस बिसर गए रस और।
क्या रोइए जो आपा थिर ना रहा है। भगत जी कहते और मुए क्या रोइए, बड़े ध्यान से इसको गहराई से सुनना। कहते तू पुराणों की रोना, वो चला गया संसार तो वो चला गया। कहते और मुए क्या रोइए, किसी के मुंहने पे मरने पे कहते क्या रोइए जो आपा थिर ना रहा है। कहते तू आप ही नहीं रहना, वो अपनी फिक्र कर तू रहना इस संसार में। हम कहते वो चला गया, हमने खुद रहना इस संसार में नहीं। तो कैसा बसेरा है हमारा, बिल्कुल थोड़े समय के लिए। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, इंसान तेर मेर करता रहता है, तेरा मेरा मेरा तेरा। इस संसार को, इस जगत को सत्य मानकर हम कहते हैं ना ये मेरा है, ये तेरा, मेर तेरे। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरबर पंख बसेरा। तरबर वृक्ष को बोलते हैं। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरबर पंख बसेरा। कहते पक्षी की बाती तू इस संसार में आया है और तूने फुल करके निकल जाना है इस संसार से, तो क्या कुछ है तेरा क्या या मेरा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरबर पंख बसेरा। जल की पीत पवन का खंबा, रक्त बूंद का गारा। हाड मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। जल की बीत पवन का खंबा, रक्त बूंद का गारा। भगत रविदास जी कहते तू अपने आप को समझ रहा है इस संसार में मैं कुछ हूं। कहते तेरी उत्पत्ति पता कैसे हुई, तो क्या है। जल की पीत पवन का खंबा, रक्त बूंद का गारा। कहते मां की रकत से और पिता की एक बूंद वीर्य से तेरी उत्पत्ति हुई। हाड मांस नाड़ी को पिंजर, बाद में उसमें क्या तेरे को मिल गया, हड्डियां मिल गई, मांस मिल गया। नाड़ी को पिंजर पर पंखी बसे बेचारा। पर उसमें एक आत्मा थी, जो उसमें एक आत्मा थी जो फंस के रह गई है शरीर। हम कहते हैं ना ये परमात्मा की अंश है ये आत्मा। कहे कबीर ये राम की अंश, ये राम की अंश है, पर इस संसार में आकर हम सभी फंस गए। देखिए कभी कभार हम इस संसार में कहते हैं कि वो फलाना इतना आगे है, वो पीछे है, उसने इतना धन एकत्रित कर लिया, उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास इतना है। एक बात याद रखिए भक्तों, ये दुनिया गोल है, ये पृथ्वी गोल है, और उसमें जो घूम रहे हैं ना वो भी हम गोल गोल भी घूम रहे हैं। सब कोई किसी के आगे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं है। हम एक चक्कर में फंसे हुए हैं सब। एक उदाहरण के तौर पर अपने मन में एक सर्कल ऐसे लगाइए, एक सर्कल बनाइए और सर्कल में ऐसे डॉट्स लगा दिए। उस डॉट्स को समझिए ये जीव यहां पर है और ये यहां पर है, ये यहां पर है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं जीव। अब सर्कल का कोई पॉइंट होता है, कोई डेस्टिनेशन पॉइंट कि कहां पहुंचना है, या कुछ उसका कोई कहां से वो इनिशियल हुआ था, कहां इनिशिएटिंग पॉइंट कहां पर है उसका, कोई होता है कोई सर्कल। उसमें सर्कल में हम कह सकते हैं कोई एक नंबर पे कोई है, कोई दूसरे पे है, पर समझते सभी हम एक हैं कि नहीं मैं एक नंबर पे हूँ, वो पीछे है मेरे एक नंबर पे, दो नंबर पे नहीं, पर हम सभी उस चक्कर में फंसे हुए हैं। ये संसार भी ऐसे ही, हम फंसे हुए हैं उस चक्कर में, कोई आगे और कोई पीछे नहीं।
हम सभी उस माया जाल में फंसे हुए हैं, पर समझते हैं कि नहीं आगे है कुछ है, पर सभी उसमें है। पर देखिए वो सियाना पुरुष पता कौन होता है? कौन उसमें चक्कर में सफल हो जाता है? पता कौन? जो उस सर्कल में से बाहर ही आ जाता है, जो सर्कल में से बाहर आ जाता है। कहते हैं इस भाग दौड़ तो मैं बाहर निकल गया। तो इस भाग दौड़ में से कौन निकलता है? पता? संत निकलते हैं, भक्ति करने वाले महापुरुष निकलते हैं। वो कहते हैं किसी के पास होगा लाखों करोड़ों होगा, मैंने नहीं चाहिए, मैंने तो प्रभु का नाम चाहिए, तो उसको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो इस चक्कर से बाहर आ जाते हैं। तो हमने भी यही समझना है, यही करना है कि संसार में रहकर हमने उस चक्कर से बाहर निकलना है। वो कैसे निकलेंगे? प्रभु के नाम के बिना हम नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, टिका रहे हैं, टिका रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हम संजीव महाजन जी के विषय में श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संजीव महाजन जी से मेरा ताल्लुक, उनके पिताजी हमारे रोटरी के मेंबर थे, श्री पी.एन. महाजन, और बहुत सीनियर और बहुत सुबुद्ध मेंबर थे। जब भी हमारे क्लब में कुछ थोड़ी सी डिफरेंसेस आते थे, वो एक पैट्रियट के तौर पे रोल अदा करते थे, सब समझाते थे। तो जब हम किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक बहुत साधु पुरुष, बहुत नेक पुरुष, और उन्होंने अपना समाज में विशेष स्थान बनाया। संजीव को हमने ग्रो करते देखा, उसकी शादी देखी, बच्चे और देखे, और उनके पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद उनका हमारे साथ काफ़ी आना जाना था। तो हमने इसको देखा कि ये बड़ी गुणवान है। उन्होंने विशेष रूप में से देखा कि कहते हैं कि मनुष्य का जो सार है ना, उसकी वाणी होती है। और मैंने आज तक कभी इसको ना गुस्से से बोलते हुए नहीं देखा। वेरी सॉफ्ट स्पोकन, जब भी कोई बात करेंगे तो बोलेंगे हाँ जी अंकल। इन्होंने कभी ये भी नहीं कहा आई डिफर विद यू। बाद में कह देंगे कि अंकल ऐसे ऐसा था, मगर वी विल नेवर से आई डिफर विद यू। ऑलवेज ही विल से यस, ठीक है ऐसे करेंगे। हमने फिर इसको चार्टर प्रेसिडेंट बनाया, नई क्लब बनाई, रोटी ब्रांसन सेंट्रल, जिसका इसको चार्टर प्रेसिडेंट बनाया, और इन्होंने बहुत खूबी से और क्लब चलाया। और मैंने देखता था अपने घरों में मीटिंग्स करनी और सारा खर्चा भी करना। शौक था, शौक से काम, जो भी काम करते थे संजीव को शौक से काम। हमने इसको इवन जीएसटी टीम का मेंबर बना के यूएसए भी भेजा। हमारा तो मन इसको गवर्नर बनाने का प्रमोट भी किया, मैंने बहुत प्रमोट किया, मगर चलो प्रभु को कुछ मंजूर था, नहीं बन सका। हमने चिन्मय मिशन बनाया, जब स्थापना की, ही वाज वन ऑफ आवर फाउंडर मेंबर्स। हमने कोई भी काम किया है, ही विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ मी, ऑलवेज। और लास्ट डे अब तक ही इज अ रेगुलर डोनर ऑफ चिन्मय मिशन। यहाँ तक इनकी आस्था ऐसी रही कि घर के बाहर जब इन्होंने गुरुदेव का सिग्नेचर्स का स्लोगन एम्बेड किया हुआ है घर के बाहर उनके नाम से,
तो स्वामी जी आते थे तो ही विल से कि अंकल मेरे घर में इनको भिक्षा नहीं लेके आओ, इनके घर में कई बार उनको भिक्षा नहीं शामिल। जिस ढंग से उसने अपना कामकाज बढ़ाया, विस्तार किया, वो भी एक अपने आप में एक मिसाल है। इसके पास करीब 150 से 200 लोग काम करते हैं। आप इमेजिन करो 150 से 200 लोग को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। जितने लीडिंग बैंक्स हैं प्राइवेट पर्सनली, जैसे ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, HDB, टाटा कैपिटल, जो लोग लोन देते हैं, आप देखो इनकी एजेंसी इनके बोरोअर्स के बोनाफाइड उनको वेरीफाई करती है। कितना विश्वास का काम। और बैंक्स इन पर विश्वास करते हैं कि जो ये रिकमेंड करेंगे वो फाल्टर नहीं करेंगे, और नहीं फाल्टर करते तभी वो डिपेंड करते हैं। तो ऐसे एथिकली काम करते थे, बोलते थे। तो बहुत से लोग अंकल इसमें हज़ारों लाखों रुपये कमाते हैं, पर मैंने इसको एथिकली चलाया और एथिकली चलाया। तो ही वॉज वेरी वेरी जेन्युइन जेंटलमैन। हमने एक बहुत अच्छा मित्र, दोस्त, साथी खोया है, और हम सब आपकी ओर से भी मैं इनको श्रद्धांजलि करता हूँ। और ये कहता हूँ मैं आपको, जैसे अभी दीपक जी बोल रहे थे कि हम अपने कर्म काटते हैं। इन्होंने कभी बोला कि कर्म 2 चीज़ें नहीं करेगा, सुख या दुख। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर दूँ, हम गुरु जी के चरणों में बैठे हैं। मनुष्य अगर सुख दुख भोगेगा सिर्फ, तो उसने अपनी मनुष्यता साबित ही नहीं की। भोग योनि तो जड़ होती है, या सुखी या दुखी। मनुष्य जीवन केवल सुख दुख भोग के चले जाने के लिए का नाम नहीं है। आपको मनुष्य शरीर मिला, माफ करना, इससे हम मनुष्य नहीं बन पाते। मनुष्य शरीर मिलने मात्र से मनुष्य नहीं बनते। मनुष्य बनता है अगर हम ज्ञान से संपन्न हो जाए। जैसे दीपक जी बोल रहे थे, या भगवान को, ईश्वर को समर्पित हो जाए। या तो मैं ज्ञान से सोचूं कि जो मेरे को मिला हुआ है किसी विधान के अनुसार मेरे को पास आया, मेरा नहीं। जिसको मैं कहता हूं वो मैं होता नहीं। आप इमेजिन करो, ये मेरा पेन है, मैं पेन नहीं। मेरा घर है, मैं घर नहीं। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। मेरे प्राण है, मैं प्राण नहीं। मेरा मन है, मैं मन नहीं। मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि नहीं। तो मैं कौन हूँ जो ये एहसास करता है कि मेरी ये नहीं, जो शेष बच जाता है, जिसको वो कह नहीं सकता कि मैं नहीं हूँ, वो मैं हूँ। जो इस तथ्य को जान जाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध आत्मा है, वो फिर इसके जैसे ये बोल रहे थे एक सर्कल होता है, वो सर्कल से बाहर निकल जाता है। तो मनुष्य जीवन का ध्येय ये है कि हम इस सर्कल से बाहर निकले। मनुष्य शरीर मिला इसलिए कि हम शुद्ध ज्ञान के समर्पित हो गए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं नहीं, मेरा नहीं। ये एक गुरुओं के बड़े सिद्ध आचार्य के वाक्य हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन है किसी का लिया, जो भी अपने पास है वो धन है किसी का लिया। मैं और मेरा कहने वाला मन है किसी का दिया, देने वाले ने दिया, दिया कुछ ऐसी शान से। मेरा है ये देने वाला, कह उठा अभिमान से। कब बिछुड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं, जिंदगानी का मजनून है किसी का नहीं। अभी दीपक जी भी यही विस्तार से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मैं मिला है, किस लिए मिला है? मनुष्यत्व स्थापित करने के लिए मिला है, ना कि पैसे कमाओ, पार्टियां करो, खाओ पियो, मस्ती करो। ये तो एनिमलिस्टिक लाइफ हो गई। अल्टीमेटली फिर वही संस्कार बनेंगे, फिर तुम्हारे इस चक्कर में आओगे। और अगर आप शास्त्रों के साथ, गुरु के चरणों के साथ, ईश्वर के साथ लग गए तो मनुष्य जीवन सफल होगा। आज आप मिशन में बैठे हैं, गुरु के चरणों में बैठे हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, काइंडली ये मिशन आपको शास्त्र दे सकता है,
स्टडी क्लासेस चलाते हैं, सत्संग करते हैं, थोड़ा सा जो आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदले। आज मैंने जहाँ जहाँ वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि सब क्या है, वहाँ पर हम आप सबके लिए, हम मनुष्यों के लिए एक संदेश भी है कि हम मनुष्य बनने के लिए हमें यह ज्ञान लेना है या ईश्वर को पूर्ण समर्पित हो जाना है कि जो वो करता है क्योंकि मेरे ईश्वर की ओर से आया है, वो गलत हो ही नहीं सकता, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना है और आगे से वो काम करने हैं, चाहे वो मेरे को देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, मेरे को पता है कि वो मेरे को देख रहा है, मैं वो काम करूँगा जो उसको पसंद होगा। आप देखोगे कि आपके जीवन का कायाकल्प होगा। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परिवार की ओर से। उन्होंने देखो अपने परिवार को कैसे बनाया, ही बस समर्पित टू हिज फैमिली, एवरीबॉडी इज समर्पिट टू फैमिली, बट इनका ध्यान पिछले कुछ सालों में टोटल अपनी फैमिली की ओर था, 100% अपनी फैमिली की ओर था। कि हिमांशु और सुदीप महाजन दोनों उनके बेटे हैं, अपने छोटे बेटे को कैसे कनाडा भेजा, के मन में था कि वो कहता था मैं कनाडा जाना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ा अच्छा भला कारोबार है, कहते नहीं मैंने कनाडा जाना है, और किस ढंग से उनको कनाडा भेजा। और मैं जब कि स्वर्गवास हुई ना उसी में इनके घर में था, कैसे आधे घंटे बाद टेलीफोन कर रहा है, मेरे को पापा के दर्शन करा, मेरे पापा के दर्शन करा, मेरे पापा के दर्शन करा। तो हिमांशु ने मेरे को कहते थे कि हिमांशु ने काम बड़ा अच्छा संभाल लिया है, तो बेटा आप जिन 4 रास्तों में वो तेरे पिताजी चले उस रास्ते पर चलोगे और जिस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने बनाया है उसको बनाने का पूरा प्रयास करोगे, कोशिश करोगे। हम लोगों का आपका आशीर्वाद है और आपकी माँ है, उसको माता का पिता का पूरा पूरा सम्मान और प्यार देना, उनको महसूस ना हो कि आज मेरे पति नहीं बने, उनको एहसास नहीं होने देना, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देना। इनको जरूरत ना पड़े कि आपको मांगे कि ये करो, आप पहले अनुभव करने की कोशिश करना कि मेरी माता को क्या जरूरत हो सकती है या क्या वो चाह सकती है, उनकी चाह पहले से पूरी करोगे तो आप संजीव महाराज के सुपुत्र हो। तो परमात्मा करे आपकी शक्ति आए और आप ऐसा करें। आप सब आए हैं, आपका परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाइयों, सीमा जी, हिमांशु, सुदीप, निकिता जी। अविनाश के कहने के बाद कुछ रह नहीं गया मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि रोटरी से ही मेरा संबंध था। 1982 से मैं जानता हूँ इनको, और जो भी यहाँ पर आए हैं यहाँ तो उनके संबंधी हैं या इनको जानने वाले हैं। जो भी इनको जानता है वो इनको पहचान गया, जो पहचान गया वो उनसे प्रेम करने लगा। जितने भी संबंधी हैं उनसे प्रेम करेंगे, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा था, निर्मल स्वभाव, मृदुभाषी, और जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो कंधे से कंधा लगा कर चलने का। मुझे याद है जब मुझे रोटरी में गवर्नर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सेवा करने का मौका मिला, तो संजीव जी को कॉन्फ्रेंस चेयरमैन बनाया गया। कॉन्फ्रेंस चेयरमैन से बड़ी कोई बात रोटरी में होती नहीं, और इन्होंने बखूबी निभाया उसको, और उसके बाद ये अवार्ड्स कमेटी चेयरमैन रहे। और हमारा, मैं से कहा करता था हमारा मैन फ्राइडे है, कभी भी ज़रूरत हो संजीव को आवाज़ लगा। और अभी कल ही सीमा गई थी कि पहले अंकल बोलेंगे, फिर आपने कहा मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, मैं तो उनको उतना ही जानता हूँ जितना रोटरी से मेरा संपर्क रहा है, नहीं वो आपको गॉडफादर मानते थे। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि संजीव जैसा बेटा मेरे को गॉडफादर मानता था। आज परिवार के लिए आप याद रखिएगा कि रोटरी परिवार हमेशा आपके साथ है। कभी ना आपको ज़रूरत पड़े, कभी भी आप सोचें कि हम आपके लिए कभी भी काम आ सकते हैं, तो कभी भी 24/7 आप हमें याद कर सकती हैं। और मैं बच्चों आपको आशीर्वाद दूंगा, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और अगर आप संजीव जी के रास्ते दिखाए हुए पर अगर 5% भी चल सकें तो मैं समझता हूँ आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं
वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, हरिओम हरिओम। कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि आप जो यहाँ पे सब महानुभाव बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, सब उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। बहुत ही नेक इंसान थे, जैसे भी पहले भी बताया, हमेशा फेस पे मुस्कुराहट, इतनी पॉजिटिविटी उनके लिए होती थी। एक बात उनकी मेरे को बहुत ही अपील करती थी कि वो रिश्तों की वैल्यू बहुत अच्छी तरह जानते थे। चाहे वो रिश्ता उनका स्टाफ के साथ हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे फ्रेंडली हो, सामाजिक हो, वो रिश्तों को बहुत बेखूबी से निभाते थे। शायद ये बात आप सब भी मानेंगे। बहुत ही नेक इंसान आज हमारे के बीच में से चला गया है। छोटा सा एक वाक्य बताती हूँ। एक बार मेरी फैमिली पे कुछ संकट आया, कुछ मुसीबत आई, और सामने दिख रहा था मैं कहाँ पे जाके उसको सॉल्व कर सकती हूँ, पर मैं उस पॉइंट को टच नहीं कर पा रही थी, या मेरी फैमिली टच नहीं कर पा रही थी। मैंने इनको फ़ोन किया, हो सकता है ये बात इनकी फैमिली को भी ना मालूम हो या मेरी फैमिली को भी ना मालूम हो। मैंने इनको फ़ोन किया तो उस समय शायद दोपहर के 2-2:30 बजे थे। उस समय कितना इनका टफ टाइम होता है, बिजी टाइम होता है अपने स्टाफ के साथ, पर इन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि मेरे को 10 मिनट दो, मैं आपको कॉल करूँगा बैक। और विदिन 10 मिनट इन्होंने मेरे को कॉल किया कि आपका काम हो गया, आप टेंशन मत लो, काम आपका हो चुका। ये उनका व्यवहार था, ये उनके रिलेशंस थे कि उस जगह पे बैठे बैठे एक फ़ोन कॉल से मेरा काम हो गया, और सच में मेरा वो काम हो गया। मैं उस ट्रबल से बाहर आ गई, या मेरी फैमिली उस ट्रबल से बाहर आ गई। ऐसे वो इंसान थे। बाकी और मैं क्या कहूँगी, बहुत कुछ बताया और आप सबको ही बहुत कुछ बताया। ये तो छोटी छोटी बातें हैं उनके लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी थी, पर उनके लिए बस 2 लाइनें बोलते हुए मैं अपने वाक्यों को विराम दूंगी। जाने है वो कौन सी नगरिया, आते जाते खत ना खबरिया। जाते हैं न जाने वापिस आने वाले, न जाने वो कौन सा देश है। धन्यवाद। इस संसारिक यात्रा को पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे स्वर्गीय संजीव महाजन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस शोक सभा में उनकी धर्मपत्नी सीमा महाजन जी, बेटा हिमांशु महाजन, बहू नीतिका महाजन, सुदीप महाजन और साथ ही संजीव महाजन जी की बहनें कुसुम खन्ना, सुमन महाजन, मंजू गुप्ता एवं समस्त रिश्तेदार, इष्ट मित्र यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब उनकी आत्मिक शांति के लिए सभी मिलकर हाथ जोड़कर उस परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षेमामृता। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ईश्वर युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परम पिता परमात्मा, आज हम इस शोक सभा में संजीव महाजन जी को और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, आप उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उन्हें सदैव अपने चरणों में स्थान दें। परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। परिवार को जो उनके जाने का दुख हुआ, उस दुख को सहने का बल भी प्रदान करें। परिवार उनके बताए मार्ग पर चलते हुए उनके अधूरे कार्यों को संपूर्ण करता रहे। घर परिवार में सुख समृद्धि निरोगता व शांति बनी रहे, ऐसी हम आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है आप हमारी इस प्रार्थना को, इस याचना को स्वीकार करोगे और प्राणी मात्र का बेड़ा पार करोगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम
द्यौ शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। छल बल के साथ माया ये प्रेम जो मुझको आकर छल बल के साथ माया ये जो मुझको आकर ओ दे